Welcome back once again, everybody present here. Children, you already know that we had begun the chapter globalization of the Indian economy, and in this sequence, we had discussed the meaning of globalization, and then we had also discussed that what was the position of Indian economy prior to 1991, and after the introduction of new economic policy in 1991, the globalization process started, and it was done to make the improvisation and betterment of the Indian economy. Because prior to 1991, our economy was heavily dependent on indigenous industry, and we has closed the door of economy for the MNC or foreign companies in order to safeguard the companies of Indian origins, and the uh, customer were under in the circumstances that they were purchasing the Indian made goods. Then after 1991, the scenario changed, and the globalization process started, in which the integration of the economy with the economies of other countries started to be done by the help of foreign trade and foreign investment, along with the help of MNC. All we have discussed earlier. Then why does MNC come to your country, or what are its motivation for setting up factories or offices in the other countries? We have also discussed it that MNC, whenever MNC open its offices or even factories in other countries, then it makes investment in form of purchasing the lands, making the buildings, and setting up the machineries, and appointing the laborers and workers there. But prior to doing this, MNC have to keep in mind some prerequisites, that because the MNC sole purpose is to earn much profit, so it keeps in mind that whether wherever the place it is has chosen for the setting of the offices or market industry, it should be close to the market, and where the skilled laborers are available in ample amount. The availability of other factors should be also supporting in the production process and doing the business there. And they also look for the government policies that it should be in their favor. Then, how does MNC? We know that globalization process is being done by help of multinational corporations. Multinational corporations at present trend are not only situated in their own country, but they are setting up their businesses and factories in different parts of the developing nations in the world, and they all do these things wherever they find the minimum production costs and fetch much profit. So the next topic here is spreading of production by MNC. MNC अपने प्रोडक्शन को कैसे बहुत सारे देशों में फैला रही है, किस तरह से उसका विस्तार कर रही है, इसको हम देखेंगे. A large MNC producing industrial equipments designs its products in a research center in the United States, and then has the component manufactured in China. These are then shipped to the Mexico and Eastern Europe, where the products are assembled and the finished products are sold all over the world. तो MNC जो है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है, वो अपने बिजनेस को किस तरह से फैला रही है, अपना व्यापार किस तरह से बढ़ा रही है, उसमें वो क्या करती है कि जैसे अमेरिका की कोई कंपनी है, तो ये अमेरिका में मतलब रिसर्च होते हैं जिस प्रोडक्ट को बनाना है, इट्स प्रोडक्ट्स इन रिसर्च सेंटर इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो उसका रिसर्च सेंटर यूनाइटेड स्टेट्स में वहाँ रिसेंटली अवेलेबल टेक्नोलॉजी अवेलेबल्स है. देन कंपोनेंट्स मतलब उस प्रोडक्ट्स का जो मतलब कंपोनेंट्स है, पुर्जे हैं, वो आपका मतलब ऑटोमोबाइल कंपनी का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो कंपोनेंट्स जो है वो चाइना में बन रहे हैं. देन उस कंपोनेंट को फिर चाइना से मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोपियन देशों में भेजा जाता है असेंबल करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए, और तब फिर जो फिनिश प्रोडक्ट तैयार होता है तो फिर उसे ऑल ओवर वर्ल्ड में बेचा जाता है. मतलब मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो एक जगह अपना सारा काम नहीं कर रही है, वो अलग अलग देशों को चूज करती है, और जहाँ उसको जिस काम के लिए उसको ज़्यादा मतलब चीप कॉस्ट पड़ता है, सस्ता काम पड़ता है, वो वहाँ वो अपना काम करती है. चाइना में उसे चीप लेबर मिल जाता है, तो वहाँ पर वो कंपोनेंट्स बनवाती है.
ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस और ये जो मार्केट से नज़दीक है यूरोप, अमेरिका और यूरोप के, तो वहाँ पर असेंबलिंग का काम करवाती है। रिसर्च का काम इजीली अवेलेबल है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो वहाँ रिसर्च का काम चलता है। मीनवाइल द कंपनीज कस्टमर केयर इज कैरिड आउट थ्रू कॉल सेंटर्स लोकेटेड इंडिया। और इंडिया में भी हाईली मतलब एजुकेटेड पर्सन्स आर अवेलेबल एट लो कॉस्ट। भारत में भी पढ़े लिखे युवक मिल जाते हैं लो कॉस्ट में, तो यहाँ कॉल सेंटर की अपना सेंटर खोलती है कंपनी, जहाँ से कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में प्रचार किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड। In this example, the MNC is not only selling its finished products globally, but more important, the goods and services are produced globally. So what does we see here? We see here that suppose this is the company of America, and it is not such a situation that it is making all the production in America and then selling all over the world. No, it has divided its production center in different parts of the world. It is making production globally and then selling the products in all over the world. We have seen that the products components of this industry is being made in China, then it is being assembled in Eastern European nations and Mexico, being nearer to the market of America and Western European nations. Then it is sold all over the world, finished product. And the call center has been established in India because the well-educated English spoken persons are easily available in India. So call center is in India. And the company is not only making production globally, but also selling the products at world level. This is a very complex way of making production. The production process is divided into small parts and spread out across the ग्लोब। तो आजकल एमएनसी ऐसी ऐसी एमएनसी कंपनियां हो गई है कि वो अपने जो फिनिश प्रोडक्ट है जिसको मार्केट में बेचना है उसको वो पार्ट वाइज कहीं दूसरे जगह मैंने उसको बनवाती है, कहीं उसको असेंबल दूसरे जगह करवाती है, फिर उसको पूरे वर्ल्ड में बेचती है। तो आजकल के रिसेंट फिनोमेना में हम देखते हैं कि एमएनसी इस तरह से कार्य कर रही है। In the above example, China provides the advantage of being a cheap manufacturing location. अब चाइना में वो अपना प्रोडक्ट्स क्यों बनवा रही है? क्योंकि वो उसको अमेरिका में की मान लीजिए कंपनी है, तो अमेरिका में अगर बनवाती है तो उसे ज़्यादा वहाँ कॉस्ट पड़ सकता है। उसको दिखाई पड़ रहा है कि ना चाइना में उसको मतलब चीप लेबर मिल रहे हैं, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम पड़ेगा, तो वो चाइना में उसको एडवांटेज मिल रहा है कि वहाँ चीप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ रहा है। मेक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोपियन आर यूजफुल फॉर देयर क्लोजनेस टू द मार्केट्स इन यूएस एंड यूरोप। तो यूएस और यूरोप के मार्केट में उसको माल भेजना है, तो अगर माल प्रिपेयर्ड मतलब उसका जो गुड्स है, आइटम्स है, अगर वो उस मार्केट के नज़दीक ही अगर वो तैयार हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा दूर से उसे नहीं भेजना पड़ेगा। अब अमेरिका में उसको बनाकर भेजने से ज़्यादा बेटर है कि मतलब वो वेस्टर्न यूरोपियन के आसपास मेक्सिको और ईस्टर्न यूरोपियन देशों में ही वो मतलब उसका असेंबलिंग हो जाए। इंडिया हैज़ हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स अंडरस्टैंड द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इंडिया में बहुत हाईली स्किल इंजीनियर्स भी मिलते हैं। इट कैन प्रोवाइड कस्टमर केयर सर्विस। तो इंडिया में कॉल सेंटर कंपनी खोल देती है, वो कस्टमर केयर को कॉल सेंटर कहते हैं, वो प्रोडक्ट्स के बारे में 24 आवर मतलब जानकारी देते हैं कस्टमर्स को। एंड ऑल दिस प्रोबेबली कैन मीन 50 to 60% कॉस्ट सेविंग फॉर द एमएनसी। तो व्हाई इज एमएनसी गोइंग टू मेक द प्रोडक्शन ग्लोबली? ये कोई भी आजकल जो बहुत बड़ी बड़ी एमएनसी है वो अपने सारा प्रोडक्ट्स एक जगह कहीं फैक्ट्री खोलकर क्यों नहीं कर रही है? उस पार्ट वाइज वो डिवाइड करके क्यों कर रही है? क्यों? क्योंकि द एमएनसी वांट्स टू मिनिमाइज इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इसके लिए वो जहाँ भी वो चीप देखती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या असेंबलिंग कॉस्ट या ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट, कॉल सेंटर कस्टमर केयर सर्विस कॉस्ट, तो जहाँ भी उसको ये सब सस्ता सब मिलता है वहाँ वो काम कराती है। तो उसका आजकल प्रोडक्शन ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड है बड़े बड़े एमएनसी का, और इससे 50 और 60% तक उसका कॉस्ट सेविंग हो जाता है। द एडवांटेज ऑफ स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर्स टू द मल्टी नेशनल्स कैन बी ट्रूली इमेंस। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आज के डेट में वर्ल्ड में इस तरह की बड़े बड़े मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशंस है कि जो ग्लोबली प्रोडक्शन बना रही है, कर रही है, और फिर उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में बेच रही है। अब ये जब ग्लोबली प्रोडक्शन हो गया तो फिर इसका मतलब आपका अब इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। अब ये अगला जो टॉपिक है इसमें हमें पढ़ना है कि जो एमएनसी है वो किस तरह से अलग अलग देशों में जा कर के अपने ऑफिसेज, अपने प्रोडक्शन को मतलब शुरू करती है। आखिर किसी देश में एमएनसी जाएगी तो
वहाँ ऑफिस खोलेगी, फैक्ट्री खोलेगी या प्रोडक्शन के लिए अपना वहाँ मतलब सेटअप तैयार करेगी, मशीनरी लगाएगी, तो इसके क्या तरीके हो सकते हैं, वो किस किस तरह से दूसरे देशों में जा करके अपना ये काम करती है। तो इसी का टॉपिक का नाम है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। तो अभी तो हम लोगों ने देखा कि मतलब किस तरह से अलग अलग देशों में वो अपना एक ही फिनिश गुड्स का अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग देशों में बना रही है, कहीं असेंबल करवा रही है, कहीं चीप लेबर होने के चलते चाइना में प्रोडक्शन करवा रही है, मार्केट के नज़दीक होने के चलते असेंबली का काम, उसका मतलब असेंबली मैंने पार्ट पार्ट को जोड़ देना, पुर्जा पुर्जा को जोड़ देना। तो वो पुर्जा पार्ट्स पार्ट्स को जोड़ने का काम मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोपियन नेशन में करा रही है कि मार्केट में नज़दीक है, और कस्टमर केयर का काम वो इंडिया में करा रही है। तो ग्लोबली प्रोडक्शन आजकल हो चुका है बड़े बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का। अब ये डिफरेंट कंट्रीज में जा कर के अब ये अपना कैसे सेटअप तैयार करती है, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ओके।